آج کے ویو 360 میں افغانستان میں انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر اور نئی حکومت کے لیے چیلنجز. صوبہ پنجاب میں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ بننے والی اسموگ میں کمی لانے کے لیے ایک جدید حل پر کام جاری. اور اب خواتین ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی جما رہی ہیں اپنے پاؤں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. افغانستان میں 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان تاحال نہیں کیا جا سکا ہے. گزشتہ ہفتے افغان الیکشن کمیشن کے سربراہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ الیکشن کے نتائج 14 نومبر تک مکمل ہو جائیں گے، لیکن اب تک ایسی اطلاعات ہیں کہ نتائج میں ابھی اور بھی تاخیر ہو سکتی ہے. تکنیکی مسائل، بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے ان نتائج کا اعلان پہلے بھی تاخیر کا شکار ہو چکا ہے. افغانستان کی صدارت کے لیے ان انتخابات میں 14 امیدوار میدان میں تھے، جن میں سے 2 فرنٹ رنرز صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ پہلے ہی اپنی جیت کا یک طرفہ اعلان کر چکے ہیں. اگر کوئی امیدوار 50% سے زیادہ عوامی تائید حاصل کرنے میں ناکام رہا تو صدارتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہوگا. جہاں افغان صدارتی انتخابات کے انعقاد کے بعد سے افغان عوام اور عالمی برادری نتائج کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں، وہیں واشنگٹن میں امریکی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کو دوبارہ بحال کرنے اور افغانستان میں مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں سیاسی استحکام بے حد اہم ہے، مگر انہیں جلد کسی امن معاہدے کی توقع نہیں ہے. ندیم یعقوب سے مزید جانتے ہیں. افغانستان میں ستمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ووٹنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. اس کے باوجود انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے لیے نتائج مرتب کرنا آسان نہیں. تاریخی طور پر افغانستان میں انتخابات کے نتائج کسی بحران سے خالی نہیں ہوتے. سن 2014 کے انتخابی بحران کے بعد پاور شیئرنگ کا ایک نظام متعارف کروانا پڑا، جس کے مستقبل کے بارے میں تجزیہ کار اب سوال اٹھا رہے ہیں. اگر صدر غنی بھاری اکثریت سے دوبارہ منتخب ہوتے ہیں تو انہیں کچھ اہم فیصلے کرنے ہوں گے. اگر وہ کم ووٹوں سے کامیاب ہوتے ہیں تو انہیں شاید عبداللہ کو ساتھ رکھنا ہوگا. مگر دونوں صورتوں میں میری رائے ہے کہ افغان حکومت کو انتظار کرنا چاہیے کہ جب آئین میں اصلاحات کا موقع آئے تو اس وقت چیف ایگزیکٹو کے عہدے کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ کیا جائے. لیکن نتائج کا انتظار کیے بغیر امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات دوبارہ بحال کرنے کے لیے متحرک ہیں. کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے لیے اب اچھا وقت ہے. ہمیں معلوم ہے خلیلزاد خطے میں رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سردی شروع ہوتے ہی افغانستان میں لڑائی کی شدت کم ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس دوران مزید بات چیت ہو سکتی ہے. آئندہ چند ماہ میں ہم مذاکرات پر زیادہ توجہ دیں گے، مگر اس کا زیادہ دار و مدار صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی استحکام یا عدم استحکام پر ہوگا. اس سے قطع نظر کہ کون انتخابات میں کامیاب ہوتا ہے، دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے لوک کافی سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کی شمولیت کے بغیر مذاکرات بے معنی ہیں. ابھی تک طالبان افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت پر آمادہ نہیں. امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے حال ہی میں صدر اشرف غنی نے 7 نکات پر مبنی ایک منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں 1 ماہ کی جنگ بندی کا مطالبہ بھی ہے. طالبان نے اس بارے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. امن کا کوئی معاہدہ تب تک ممکن نہیں جب تک وہ افغانوں کے درمیان نہیں ہوتا. طالبان کو معلوم ہے کہ امریکہ کی اولین ترجیح ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، اور امریکہ کو معلوم ہے کہ طالبان افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی چاہتے ہیں. تو اس وقت دونوں ایک دوسرے سے زیادہ مراعات حاصل کرنا چاہتے ہیں. بروکنگز انسٹیٹیوشن سے منسلک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن جلد کسی معاہدے کے طے پانے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں. اس وقت تو لگتا ہے کہ افغان قیادت میں کوئی بھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اگر طالبان سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ آئندہ برس کے انتخابات سے پہلے فوج نکال لیں گے تو پھر وہ کیوں کوئی رعایت دیں گے. اگر امریکہ مذاکرات دوبارہ بحال کر بھی لے تو میرا خیال ہے کہ سن 2020 میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوگی. امید رکھنی چاہیے کہ سن 2021 میں کوئی حتمی معاہدہ طے پا جائے. تاہم تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے طالبان کے بارے میں زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ اپنا لی ہے، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ اب طالبان مذاکرات کو زیادہ سنجیدگی سے لیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سن 2018 میں دنیا بھر میں دہشت گردی کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کا بھی احاطہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک اور داعش خراسان کی طرف سے دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا۔ ان حملوں کا ٹارگٹ افغان سیکیورٹی فورسز، افغان حکومت، غیر ملکی افواج اور عام شہری رہے۔ 30 اپریل 2018 کو ہونے والے ایک حملے میں 10 صحافی بھی مارے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2018 میں افغانستان کو اپنی سرحدوں کے تحفظ میں مسائل کا سامنا رہا، خاص طور پر پاکستان اور ایران سے جڑے بارڈرز کو محفوظ بنانا ایک مشکل امر تھا۔ افغانستان اور پاکستان کے امن عمل کے منصوبے کے تحت جولائی میں پہلی بار بات چیت تو ہوئی اور دونوں ممالک کی طرف سے آگے چل کر سرحد کے دونوں جانب فورسز کے درمیان بہتر مواصلات کے نظام کی ضرورت پر آمادگی بھی ظاہر کی گئی، لیکن اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ رپورٹ میں افغانستان کی جانب سے ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر بھی بات کی گئی، جس میں اداروں کی جانب سے عدم تعاون اور عدم قابلیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالی معاملات کی تحقیقات کے لیے محکمے ایک دوسرے سے کم تعاون کرتے ہیں۔ افغانستان کے موجودہ حالات اور اس بارے میں خطے میں پائے جانے والے خدشات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ یوسفزئی صاحب، تاریخی طور پر کم ترین ٹرن آؤٹ اس دفعہ کے افغان الیکشنز میں رہا اور نتیجہ اس کا ابھی تک بھی افغان حکومت سامنے نہیں لا سکی۔ حکومت تو اس کی وجہ بتاتی ہے کہ تکنیکی دشواریاں ہیں، کیا کہانی اس سے مختلف ہے جو بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، افغانستان میں تو پہلی بار انتخابات نہیں ہو رہے۔ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد 2001 میں 7 انتخابات تو ہو چکے ہیں، اور پچھلی بار بھی کوشش کی گئی تھی کہ بایو میٹرک سسٹم کو استعمال کیا جائے، تو اس کی تربیت بھی دی گئی ہے اور کافی تیاری ہوئی ہے۔ 2 بار تو یہ صدارتی انتخابات ملتوی ہو گئے تھے، تو مزید وقت بھی الیکشن کمیشن کو مل گیا تھا۔ میرے خیال میں اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو تکنیکی وجوہات بھی ہیں، ٹرن آؤٹ کم رہا، نتائج جو ہیں وہ مرتب نہیں ہو رہے، بار بار اس میں ڈیلے ہو رہا ہے۔ لیکن پھر طالبان نے جو دھمکیاں دی وہ بھی کارگر ثابت ہوئی۔ ٹرن آؤٹ اتنا کم ہو گیا ہے کہ یہ انتخابات کے بارے میں، کہ نمائندہ حیثیت کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں جی۔ اور جو بھی منتخب ہوگا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ پورے افغانستان کی، سارے افغانوں کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اور میرے خیال میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو دیر ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایسے نتائج مرتب کیے جائیں کہ اس کے اوپر زیادہ اعتراض نہ ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو اور شفافیت ہو۔ یہ آسان کام نہیں ہے افغانستان کے حوالے سے، لیکن یہ بار بار انتخابی کمیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن نتائج صحیح اور قابل اعتبار آنے چاہیے۔ رائٹ، تو افغان مصالحت کے لیے ابھی ہم نے دیکھا خصوصی امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد نے کچھ ہی ہفتے پہلے افغان امن کے لیے اپنی کوششیں پھر سے شروع کی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ نے قیام امن کی کوششوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے انتخابی نتائج کا انتظار بھی نہیں کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات امریکہ ہی نے ختم کیے تھے 8 ستمبر کو، اور امریکہ ہی ان کو شروع کر سکتا ہے۔ امریکہ چاہے تو مذاکرات جو ہیں وہ کل بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ طالبان تو تیار ہیں۔ زلمے خلیلزاد اگر اس خطے میں اور کافی دوسرے ملکوں میں گئے ہیں اور وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ طالبان سے پھر مذاکرات کریں گے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کچھ شرائط مانے، خاص طور پہ وہاں پر وائلنس میں کمی ہو جائے۔ یہ دو جو باتیں ہیں، یا تو وائلنس میں کمی ہو یا پھر ایک لمیٹڈ، یعنی 1 مہینے کے لیے کوئی جنگ بندی ہو جائے۔ تو پاکستان نے بھی تجویز دی تھی، اور میرے خیال میں طالبان بھی شاید اس کے لیے کم از کم وائلنس کم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائلنس میں کچھ کمی ہوئی ہے، کیونکہ طالبان کو پتہ ہے کہ اگر مذاکرات پھر سے شروع ہوں گے، امن معاہدہ ہوگا، تو طالبان کو کافی فائدہ ہوگا۔ ایک چیز یوسف، پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہیں افغان حکومت کے، وہ ہمیشہ ایک اس پہ کنسرنز رہتے ہیں، کویسچنز رہتے ہیں۔ چیلنجز کی شکل میں اسی طرح قائم رہیں گے یا افغان لیڈرشپ کی تبدیلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ حل کرنے میں کامیاب رہے گی؟ نہیں، میرے خیال میں جو بھی افغانستان میں اقتدار میں آئے گا تو یہ
जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, ये रहेंगी, क्योंकि हामिद करज़ई के भी काफ़ी मसाइल थे पाकिस्तान के साथ, अशरफ गनी के भी हैं जी। आइंदा जो भी आएगा, ये कुछ तो पुराने मसाइल हैं, कुछ नए हैं। ये पख्तूनिस्तान और बलूचों और पख्तूनों के हुकूक और ड्यूरन लाइन के बॉर्डर का मसला, लेकिन जो हालिया जो मसले हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, उसमें जो दोनों मुल्कों की पॉलिसी है उसमें काफ़ी एक फ़र्क है। देखते हैं तो ये मैं पॉलिसी समझता हूँ कहाँ तक कि यूसुफ साहब आगे जाके पाकिस्तान और अफगानिस्तान और खत्ते के लिए हेल्पफुल रहेगी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। दूसरी जानिब नाज़रीन चलते हैं, तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उस हवाले से अफगानिस्तान में जो ख़वातीन के हुकूक के लिए दुनिया में परेशानी पाई जाती थी उस पर क्वेश्चंस तो हमने काफ़ी देखे। अफगानिस्तान में ख़वातीन की ज़िंदगियों में गुज़श्ता चंद सालों से क्या तब्दीलियाँ आई हैं, उसकी एक झलक सूबे बामियान में दर्जनों ख़वातीन के हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की शक्ल में हमें दिखाई देती है। ज़िंदगी में आने वाली ये तब्दीली उनके लिए क्या माने रखती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के बामियान सूबे को दो बड़े और तारीखी बुद्ध मुजस्मों के लिए जाना जाता है, जिन्हें सन 2001 में तालिबान ने तबाह कर दिया था। इसके बाद से तालिबान को वहां से निकाल दिया गया है और बामियान मुल्क का महफूज तरीन सूबा बन गया है। मकामी लोग इस आज़ादी और तरक्की से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बामियान में पहली मर्तबा 8 हफ्तों के एक तरबीती प्रोग्राम को मुकम्मल करने के बाद 58 खवातीन के एक ग्रुप ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। कार चलाना जरूरी है, हर एक को इसे सीखना चाहिए और अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा माशरा रिवायती है, हो सकता है कि वो अच्छा ना समझे, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ बामियान में कम चैलेंजेस का सामना है। अफगानिस्तान जैसे क़दामत पसंद मुल्क में मजहबी स्कॉलर्स का काफी एहतराम किया जाता है। बेशतर स्कॉलर्स औरतों के मौसीकी में हिस्सा लेने की मुखालफत करते हैं, ताहम ऐसा मालूम होता है कि औरतों की ड्राइविंग इनके लिए काबिल कबूल है। औरतों के कार चलाने पे पाबंदी नहीं है, तावक्त है कि वो हिजाब का इस्तेमाल करें। इस वक्त बामियान में तकरीबन 100 खवातीन ड्राइविंग कर रही हैं। बहुत से लोग इसे अच्छा मुस्तकबिल गर्दानते हैं। मैं गाड़ी चलाते हुए फख्र महसूस करती हूँ। मैं खुश हूँ कि औरत होते हुए मुझे ड्राइविंग का मौका मिला। ये अच्छी बात है कि खवातीन ड्राइविंग कर रही हैं, इससे तरक्की का पता चलता है। दूसरे मुल्कों में खवातीन पायलट और डॉक्टर हैं। मुझे औरतों के कार चलाने पर कोई एतराज नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो अच्छी ड्राइवर हैं, वो काफी तहम्मुल से ड्राइविंग करती हैं। इंस्ट्रक्टर्स का कहना है कि खवातीन में सीखने की चाह है। इस साल के शुरू से खवातीन के जिस ग्रुप को हम तरबियत देते रहे वो निहायत ज़हीन थी और वो काफी दिलचस्पी लेती हैं। बामियान की ट्रैफिक पुलिस को तवक्को है कि आइंदा बरस ड्राइविंग कोर्स में शिरकत करने वाली खवातीन की तादाद में खासा इजाफा होगा। सफर बामियानी के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या पाकिस्तान में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं और उनमें इजाफे की वजूहात क्या हैं? जानिए हमारी वेबसाइट पर इस खुसूसी मजमून के जरिए, और इसके अलावा आप अपनी राय भी हमसे शेयर कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ज्यादा सर्दी या गर्मी, स्कूल तो हम छुट्टियां होते हुए देखते ही थे, लेकिन आज लाहौर के तमाम स्कूल अचानक स्मॉग बढ़ने की वजह से बंद हुए। ये बहस एक तरफ के फ़िज़ाई आलूदगी के लिए जिम्मेदार कौन है, गुज़िश्ता कई सालों से ये अवाम के लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर बन चुकी है। साइंसदान इसके हल के लिए कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं। पाकिस्तान के कुल फुजले का 40% ज़रई मवाद पर मुश्तमिल है, जिसे खुली फ़ज़ा में जलाने से स्मॉग बनती है। लेकिन अगर इसे रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाए तो माहौल दोस्त ईंधन बनाया जा सकता है। सुबह पंजाब के शहर मुरीदके में और लाहौर समेत आसपास के शहरों से ऐसा ही फुजला जमा करके सस्ती गैस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तफसीली रिपोर्ट जानते हैं समन खान से। लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मुरीद के मैकाइमिस फैक्ट्री में बायोमास की रिसाइकलिंग होती है। गाय के गोबर, पोल्ट्री और ज़रई फुजले, लकड़ी के बुरादे, घास और पत्तों को मिलाकर एक ऐसे कारतूस की शक्ल दी जाती है जो बंदूक में नहीं बल्कि एक गैसी फायर नामी चूल्हे में जलाया जाता है, जो उपलों या लकड़ी से जलाए जाने वाले रवायती चूल्हे का मुतबादिल है। लकड़ी का या किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट का एक खसूसियत होती है जिसे हम तेल भी कह सकते हैं। वो तेल इसके बाहर निकल आता है और इसके ऊपर एक कवर सा बना लेता है और इसकी बल्क डेंसिटी इंक्रीज़ कर लेता है। गैसीफाइंग यूनिट बना रहे हैं जो आप उसमें वुड पैलेट्स इनपुट कर दें और आपको वो गैस
दे देगा। लाहौर की सतह पर काम करने वाला अमल फॉर लाइफ नामी ये इदारा चंद माहौल दोस्त साथियों ने 2 साल कबल शुरू किया। मकसद था लाहौर और आसपास के इलाकों से ऐसा बायोमास इकट्ठा करना जो अगर खुली फिजा में अलहदा जलाया जाए तो इसका धुआं मुज़र सेहत स्मोक का बाइस बनता है। अमल फॉर लाइफ अब इस मंसूबे को इन इलाकों तक फैलाना चाहता है जहां कुदरती गैस की सहूलत नहीं। बड़े एरिया से एक वेस्ट को कलेक्ट करके लाना, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, इसलिए ये हमारा आइडिया ये है कि इसको यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर ही छोटे यूनिट्स लगाए जाएं और वहीं पे मकामी सतह पे जो वेस्ट है उसको वहीं पे इकट्ठा करके वहीं पे इसके पैलेट्स बना के उसी यूनियन काउंसिल में इसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए, सेल कर दिया जाए। इसका इस्तेमाल देही इलाकों की ख्वातीन के लिए भी आसान बनाने की कोशिश की गई है। फैन है वो हमें उसकी सेकेंडरी जो उसकी एयर है और प्राइमरी एयर को मिक्स करके हम चलाते हैं। उस फ़ैन को चलाने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, वो आप पावर बैंक से भी चला सकते हैं, किसी मोबाइल फ़ोन के किसी भी अडाप्टर से चला लें आप, आम मोबाइल फ़ोन जो आम हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर की हम प्लेट्स भी साथ देंगे, सोलर के ज़रिए आपको किसी बिजली की ज़रूरत नहीं है, सोलर से आप डायरेक्टली इसको चूल्हे को चला सकते हैं ईजीली। चाय पक जाती है तो आंधी वगैरह ही पक जाता है, खांडी पक जाती है, मिक्सर आ करिए रोटी पक जाती है, अलग पक जाता है भी बालन का भी घट खर्चा होता है, मुझे जब बालन का ज़्यादा धुआं ज़्यादा आता सी धुआं भी घट भी आता। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों में जीरो वेस्ट के मुतालिक शऊर उजागर किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों को गीले और खुश्क कचरे के लिए 2 अलग कूड़ादान इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है ताकि रिसाइकलिंग में मुश्किल ना हो। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का इंतज़ार करने की बजाय इनफरादी तौर पर किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरसब्ज़ और साफ़ सुथरे पाकिस्तान की जानिब उठने वाला हर कदम ही अहम है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। हॉलीवुड में मशरकी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले किरदारों की तारीख बड़ी पुरानी है। ये किरदार तब से इन फिल्मों का हिस्सा हैं जब खामोश फिल्में बना करती थी, लेकिन बहुत से फिल्म नाक़दीन और स्कॉलर्स का ख्याल है कि अमरीकी फिल्मों में एशियाई खुसूसन चीनी अफराद को पेश करने का तरीका दुरुस्त नहीं था। लेकिन अब ना सिर्फ ये तरीके तब्दील हो रहे हैं बल्कि एशियाई किरदार भी वक्त के साथ साथ इर्तिका के अमल से गुजर रहे हैं। कैसे, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड के बीचों बीच कायम इस तारीखी चीनी फिल्म थिएटर से लेकर पुराने फिल्म सितारों के दरमियान कभी बहुत मकबूल इस फॉर्मोसा कैफ़े तक हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री आगाज से ही चीनी सकाफत के सहर में मुब्तला रही है। ऑडियंस को एक ऐसे अजीब देश की झलक दिखाई जाती थी जिसके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं था। ये सब यहीं से शुरू हुआ। फिल्म मेकर आर्थर डोंग ने इस मौजू पर फिल्म बनाई और हॉलीवुड चाइनीज़ के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने खुसूसन 1920, 30 और 40 की दहाई में चीनी कल्चर पर फिल्म इंडस्ट्री की तवज्जो का जिक्र किया और बताया कि कैसे फिल्मों में एक जैसे चीनी किरदार पेश किए जाते हैं। मैंने चीनी किरदारों को स्क्रीन पर देखा जो हमेशा मुलाजिम, कुली या धोबी होते थे, और अगर चीनी खातून फिल्म में शामिल होती थी तो वो भी मुलाजिम या तवाइफ के किरदार में। दूसरी तरफ अहम चीनी किरदार सफ़ेद फाम अदा करते थे। मरकजी किरदार चेहरा पीला किए हुए अदाकार अदा करते थे। चेहरे का रंग पीला होने का मतलब ये है कि दर हकीकत वो अपनी सफ़ेद रंगत को पीला करते थे और आंखों की बनावट भी तब्दील की जाती थी। इनमें मशहूर विलन फुमांचू शामिल थे और फिर 1926 में बड़े पर्दे पर चार्ली चैन नामी किरदार पहली बार नमूदार हुआ। इसका मकसद था कि वो एक एशियाई नजाद अमरीकी का मस्बत खाका पेश करता। ये किरदार ज़हीन और स्मार्ट था, लेकिन वो इंतहाई हद तक गैर मुअस्सिर साबित हुआ क्योंकि उसको दकियानुसी अंदाज में पेश किया गया और वो गलत अंग्रेजी भी बोलता था। 1937 में आने वाली फिल्म द गुड अर्थ चीनी किसानों से मुताल्लिक थी, जिसमें मरकजी किरदार सफ़ेद फामों ने अदा किए। लेकिन कई दहाइयों पर मुहित अरसे के दौरान एशियाई और चीनी अमरीकियों को हॉलीवुड में काम मिला और कुछ को मशहूर ज़माना हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में अपने नाम का सितारा देखने का एजाज़ भी मिला। लेकिन अब भी बहुत से फिल्मबीन और शायकीन इन मरकजी किरदारों को सफ़ेद फामों को दिए जाने पर तनकीद का इजहार करते हैं, जो उनके मुताबिक एशियन अदाकारों को दिए जाने चाहिए थे।
लेकिन फिर 2018 में क्रेजी रिच एशियन नामी फिल्म बड़े पर्दे पर उजागर हुई। इस फिल्म की ज़्यादातर कास्ट में एशियन अफराद थे और न सिर्फ डायरेक्टर एशियन था बल्कि मुसन्निफीन में से भी एक शख्स एशियाई नजात था। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट थी। क्रेजी रिच एशियन नाकरीन और शायकीन के नज़दीक बड़ी कामयाबी थी, जो इस बात की पहचान है कि माहौल तब्दील हो रहा है। फिल्म मेकर्स की तरबियत हो रही है, उनके रवैयों की तरबियत हो रही है और उन्हें हौसला मिल रहा है, जिसके नतीजे में वो अब सफ़ेद चेहरों को पीला करने से इनकार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भी एशियन अमेरिकन अफराद के लिए कई दरवाजे खोल दिए हैं ताकि वो अपनी शर्तों पर अपनी कहानी बयान कर सकें। हमारे पास अब कई प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, हुलू भी है। अमेरिका में एशियाई नजाद अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और नई आने वाली एशियन अमेरिकन की नस्ल अब मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इस्तेमाल कर सकती है ताकि बॉक्स ऑफिस पर रिवायतों को तोड़कर अपनी कहानियाँ बयान कर सकें। एलिजाबेथ ली के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक ज़माना था जब जहाज़ उड़ाने का शोबा मर्दों की इजारादारी वाले शोबों में से एक था। फिर दुनिया भर में ख़वातीन ने एयर पायलट्स बनकर इजारादारी को ख़त्म किया। आज ड्रोन्स के शोबे में ऐसी ही सूरत हाल नज़र आती है, जहाँ ड्रोन उड़ाने वाली या इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। हमारी अगली रिपोर्ट में मिलिए एक ऐसी अमरीकी ड्रोन पायलट से जिन्होंने अपनी जैसी दूसरी ड्रोन पायलट्स के लिए एक कम्युनिटी की बुनियाद रखी है। जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी तब से दीवार चीन को देखने का ख्वाब था। जब मुझे पता चला कि मैं अपने सफर की कहानी एक बिल्कुल नए जाविये से बयान कर सकती हूँ, तो मैं जैसे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। ड्रोन चलाने वाली नई ड्रोन पायलट एलेना ब्रुनोस्ट्रो जब चीन के अपने पहले बड़े ड्रोन सफर से वापस आई तो उन्होंने अपने जैसी ड्रोन चलाने वाली दीगर खवातीन को तलाश किया, लेकिन उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी मिली जिन पर मर्दों का राज था। लिहाजा उन्होंने खुद एक कम्युनिटी का आगाज किया। अमेरिका में सर्टिफिकेट रखने वाले ड्रोन पायलट्स में से 6% से भी कम खवातीन हैं। लिहाजा मैंने जरूरत के पेश नज़र अक्टूबर सन 2017 में वीमेन हु ड्रोन के नाम से एक कम्युनिटी बनाई, जिसका मकसद दुनिया भर में ड्रोन उड़ाने वाली खवातीन के दरमियान राब्ता उस्तवार करना था। जल्द ही उनकी कम्युनिटी मशहूर हो गई। वो कहती हैं कि अब ड्रोन चलाने वाली 30,000 से जायद खवातीन रोजाना की बुनियादों पर वीडियोस की शक्ल में अपने ड्रोन तजर्बात को शेयर करती हैं, लेकिन वो यहाँ रुकी नहीं। सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, रात से लेकर डेटा इकट्ठा करने की नौकरी, मैराथन, स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग को रिकॉर्ड करने तक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें रिकॉर्ड करने के लिए आप ड्रोन इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में इसके मेंबर मुलाकातें करते हैं, इसकी तरबियत हासिल करते हैं और हुकूमती सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑनलाइन मदद फराहम करते हैं, जो अमेरिका में कमर्शियल ड्रोन चलाने के लिए जरूरी है और ऐसे ड्रोन पायलट्स की मार्केट में जरूरत भी है। खवातीन छोटी उम्र से ही ड्रोन तक रसाई हासिल नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही। इस मैदान में दाखिल होने के लिए उनके सामने कोई खास मिसालें नहीं जो उनकी हौसला अफजाई कर सकें। वो कहती हैं कि खवातीन के ड्रोन ना चलाने की एक वजह ये भी है कि इस काम को एक मर्दाना काम के तौर पर पेश किया जाता है। हम स्कूलों में जाते हैं और हम लड़कियों और लड़कों से ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं और इसका तजर्बा करके दिखाते हैं। हम उन्हें दिखाते हैं कि क्लासरूम में छोटा ड्रोन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर हम उन्हें बाहर ले जाते हैं और बड़े ड्रोन चलाकर दिखाते हैं। उन्हें इस रवैयों में तब्दीली लाने की उम्मीद है, इसलिए वो बच्चों में ड्रोन चलाने का शौक उजागर करना चाहती हैं। दुनिया को बदलने के लिए एक वक्त में एक ड्रोन। जेना मिचेल के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360 प्रोग्राम। पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है @urduvoa, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्ला खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।